میں شروع سے ہی اپنی بڑی بہن کے دباؤ میں رہی۔ وہ جو کہتی مان لیتی۔ میری شادی بھی آپا نے اپنے شوہر سے کہہ کر ان کے ایک دوست سے کروائی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے بہت چاہتے تھے، مگر میں میکے کی محبت میں کھوئی رہتی تھی۔ چونکہ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی، میکے سے دور ہو گئی تھی، اس لیے گھر والوں کے لیے اداس رہتی۔ جی چاہتا کہ روز وہاں جاؤں اور میکے کا دیدار کروں۔ آپا بھی میری طرح دوسرے شہر بیاہی گئی تھی، مگر بعد میں وہ والدین کے شہر منتقل ہو گئی اور میکے کے نزدیک جا بسی۔ جب وہ ملنے آتی میں نے کھوئی کھوئی سی ملتی۔ وہ کہتی کہ تم زبیر سے کیوں نہیں کہتی کہ لاہور چل کر رہیں؟ دیکھو میں نے کیسے اپنے شوہر کو ماں باپ کے قریب بسا لیا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ میں نے بہت کوشش کی، زبیر کو بارہا سمجھایا، مگر وہ نوکری چھوڑ کر لاہور جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے بڑی محنت سے یہ مکان بنایا ہے، سرکاری ملازمت ہے، میں ملتان کو چھوڑ کر لاہور نہیں جا سکتا، تمہیں میرے ساتھ یہی رہنا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، 4 بچے ہو گئے، آپا مجھے برابر اکساتی رہی، لیکن زبیر نے نہ ماننا تھا اور نہ میری مانی۔ وہ اپنے عزیزوں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ آپا فون کرتی کہ تمہارا شوہر ضدی ہے، اسے تمہاری خوشی منظور نہیں۔ مجھے دیکھو، میں اپنے ارادے میں کامیاب رہی۔ اب ہم یہاں لاہور میں میکے کے نزدیک رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ ان کی ایسی باتیں مجھے اور اداس کرتی اور میں آہیں بھر کر رہ جاتی۔ اسی طرح میکے کے نزدیک گھر لینے کی آرزو میں روتے سسکتے وقت بیت گیا۔ بچے بڑے ہو گئے، جب کبھی سال میں ایک بار میکے آتی، آپا کو خوش باش دیکھ کر دل حسرت سے بھر جاتا۔ وہ بھی من ہی من میں دبی اس چنگاری کو اور ہوا دیتی، جی محسوس کر واپس ملتان آ جاتی۔ اسی دوران میرے جیٹھ آئے اور کہا کہ ہم تینوں بھائیوں کی اولاد اکٹھی ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں رشتے طے کر لیتے ہیں۔ یوں میرے شوہر نے اپنی مرضی سے اپنے چھوٹے بھائی کی بچیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا اور اپنی اکلوتی بیٹی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ گھر آ کر میں نے زبیر سے کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا اور میرے بھائی کا نہیں، حالانکہ میں سدرا کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے پہلے یہ بات کیوں نہ کہی؟ جب بات طے کر دی گئی اب کہہ رہی ہو؟ تم نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور جب میں نے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت تم سے پوچھا تو تم چپ رہی۔ اب بات ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک میاں غلطی پر نہ تھے، انہوں نے میری مرضی پوچھی تھی اور میں چپ رہی تھی، لیکن اب آپا مجھے اکسا رہی تھی کہ منگنی نکاح تو نہیں ہوا، صرف زبانی وعدہ ہے، انکار کیا جا سکتا ہے۔ مگر زبیر اصول پسند آدمی تھے، وہ زبانی وعدے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ اب اپنی زبان سے پھرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی سگے بھائیوں سے ناراض ہو کر تعلقات نہیں توڑ سکتے تھے۔ جب دیکھا کہ میاں نہیں مانتے تو بچوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بیٹی کو ہم خیال کر لیا، اس نے رفتہ رفتہ دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زبیر بہت پریشان رہنے لگے۔ جب میں دیکھتی کہ زبیر ذہنی اذیت میں ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی، مگر پھر دل دکھ سے بھر جاتا کہ انہوں نے کبھی مجھے تکلیف نہ دی تھی، بچوں سے بھی والہانہ محبت کرتے تھے۔ بس میری یہی خواہش پوری نہ کی کہ میکے کے قریب آ کر بسے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ وہ اتنی اچھی ملازمت چھوڑ نہیں سکتے تھے، وہ اپنے والدین بہن بھائیوں سے بھی دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم سب نے مل کر انہیں بے حد بے سکون کیا۔ ان کی لائی ہوئی چیزیں چھپا دیتے، پھر تقاضا کرتے اور لے کر آئیں۔ جب وہ پریشان ہونے لگے، ان سے غلطیاں سرزد ہونے لگی۔ دفتری امور میں غفلت ہوئی اور انہیں چارج شیٹ مل گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ انہیں مکمل رقم بھی نہ مل سکی اور کچھ مالی نقصان بھی ہوا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناکام ہوں گے اور بدل ہو کر کہیں گے چلو لاہور چل کر ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور جلدی ان کا کاروبار چل پڑا۔ ادھر آپا کا فون آیا کہ اب زبیر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو یہاں آ جاؤ۔ میرے میاں نے جرنل اسٹور کھول لیا ہے اور ہم بہت خوشحال ہیں۔ دیکھو تو ہم کتنے خوش ہیں، تم لوگ بھی لاہور آ جاؤ، تمہارے دن بھی سنور جائیں گے۔ لاہور بڑا شہر ہے، ملتان میں کیا رکھا ہے؟ ان کی ایسی باتوں نے میرا سکون ختم کر دیا۔
मैंने ना शोहर का खुलूस देखा ना अपने बच्चों का भला। बहन का पढ़ाया हुआ सबक मेरे जहन में इस कदर घर कर गया था कि मियाँ का कारोबार जमने नहीं देना। अगर जम गया तो याद रखना, हमेशा के लिए मैके से दूर ही रहोगी। इन्हीं दिनों मेरा बड़ा बेटा बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाने जा रहा था। मैंने से रोक दिया। घर का माहौल इतना खराब कर दिया कि जुबैर सख्त दिल बर्दाश्ता हो गए। बच्चे नाफरमानी करने लगे और बाप की बात ना मानते। मैंने इनके दिलों में लाहौर जाने की आरजू बसा दी थी। जुबैर बिल्कुल अकेले हो गए और दिल शिकस्ता होकर बिस्तर पर जा गिरे। इन्होंने हम सबसे कलाम तर कर दिया और हमने सामान बांध लिया कि अब अपनी आरजू खुद पूरी करनी है। मैं बच्चों को लेकर मैके आ गई और वो अकेले ही घर और कारोबार संभालने को रह गए। जब मर्द को घर में जहनी सुकून ना मिले तो वो कारोबार में यकसुई कैसे हासिल करेगा। जिनके लिए मियाँ जी जान से मेहनत कर रहे थे, वही इनको अकेला छोड़कर चले गए। वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते कि तन्हाई और अकेलेपन का सामना भी करते और काम पर भी तवज्जो देते, जबकि कारोबार को कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत जरूरी होती है। नया नया काम था, सब कुछ उजड़ गया। वो बार बार खत लिखते, पैगाम भिजवाते कि वापस आ जाओ, मुझे ना उजाड़ो, घर और बच्चों को बर्बाद ना करो। वो बीमार पड़ गए मगर हम वापस ना गए। वो रो रो कर इल्तिजा करते, मेरे वालिदैन से फरियाद करते। वालिदैन मुझे समझाते मगर मैं शौहर की झूठी शिकायतें बयान कर देती। वालिदैन बेबस रह जाते। मैं कहती, इतने साल हम इनके साथ रहे, अब वो हमारे पास आकर रहे। एक दिन वो खुद आ गए। बच्चों से कहा, मेरे लखते जिगर, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरा कसूर तो बताओ। आखिर तुम लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? हम क्या जवाब देते? हमारे दिल और दिमाग जंगालूद हो चुके थे। वो मेरी एक सहेली राबिया के पास गए। कहा, तुम अफीफा को समझाओ, मेरी बीवी ने बच्चों को मुझसे बागी कर दिया है, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। राबिया ने आकर मुझे समझाया कि ऐसा ना करो, शौहर से बढ़कर कोई नहीं होता। वो गमसदा रहते हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। वापस घर जाओ। औरत का असल घर वही होता है जहां वो ब्याह कर जाती है। मैका सिर्फ वालिदैन तक है, बाद में ना बहन सहारा देती है ना भाई। मेरी जगह आपा ने राबिया को जवाब दिया, इतने बरस मेरी बहन ने अपनों से दूरी काटी है, अब जुबैर भाई अपनों से दूरी बर्दाश्त करें। इनको भी पता चले कि माँ बाप और बहन भाइयों से दूरी पर क्या गुजरती है। राबिया ने आपा से कहा, वहां मुल्तान में जुबैर भाई के सब लोगों से कारोबारी राब्ते और ताल्लुकात हैं। इनके दोस्त हैं, बरादरी है, भाई हैं, माँ बाप हैं जो आड़े वक्त में इनकी मदद करते हैं। लाहौर में इनके लिए नए सिरे से काम करना आसान नहीं होगा। यहाँ इनकी कौन मदद करेगा? आपा बोली, तुम क्यों फिक्र करती हो, यहाँ हम जो हैं हम मदद करेंगे। नन ने मेरे शौहर से कहा, तुम्हारी बीवी और औलाद तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, इतने बड़े घर में अकेले सोते हो। ऐसा ना हो कि रात को कोई चोरी की नीयत से आ जाए और तुम्हें अकेला पाकर खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा दे। जुबैर बोला, ये तो अच्छा ही होगा, रोज रोज मरने से एक दिन ही मर जाऊं। एक दिन इतला मिली कि छोटे देवर का इंतकाल हो गया है। हम मुल्तान गए। वहां आने जाने वाली औरत ने पूछा कि तुम मियाँ का घर छोड़कर क्यों चली गई हो? तो मैंने सभी से मियाँ की गलत शिकायतें की। इस पर औरतों ने जुबैर को बुरा समझने के बजाय मुझे ही को समझाया कि तुम मान जाओ और मियाँ को दोष मत दो, क्योंकि तमाम अरसा जुबैर ने तुम्हारा ख्याल रखा है, इतना अच्छा घर बनाया है, तुम्हारे लिए मेहनत की है, कमाया है। अब इस उम्र में इनको अकेले कर जाना ठीक नहीं है। मियाँ अंदर है। मैं सामने बैठी थी, रो रहे थे। मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अखलाकन तसल्ली दी। बोले, देख लो, बस यही जिंदगी की हकीकत है। ये जिंदगी 2-4 दिन की है। हम आज हैं, कल नहीं। हम बड़े भाई मौजूद हैं और छोटा चल दिया। कल का भरोसा नहीं, बस अब जिद खत्म करो और घर को लौट आओ। 5 साल की बेरुखी और जुदाई खत्म की और आखिर हम घर चले आए। अगले दिन इनको बुखार हो गया। भाई की तदफीन में दौड़ धूप की थी, सीने में दर्द की शिकायत थी और लेट गए। 3 रोज यूं ही बेसुध पड़े रहे। बुखार भी हो गया था। बड़ा बेटा जाकर बुखार की दवा ले आया, अफाका ना हुआ। बच्चे मेरे पास दूसरे कमरे में बैठे थे। वो अकेले कमरे में पड़े रहे और हम खा पी कर सो गए। अचानक जाने क्या हुआ, सुबह उठ गए और रात के पहने लिबास में घर से निकल गए। जेब में बटवा भी ना रखा
इस दिन सख्त सर्दी थी, बारिश भी शुरू हो गई। हमने ख्याल ना किया कि सर्दी में बारिश भी हो सकती है, और वो बुखार में थे। कोई इनके पीछे तलाश में ना निकला कि खुद ही आ जाएंगे, शायद दवा लेने निकले होंगे। रात तक ना आए। रात 11 बजे फ़ोन आया कि अनजाने रास्ते में कहीं गिर गए थे। अजनबी अस्पताल ले गए, अभी तक बेहोश थे। वो तो अचानक एक वाकिफ कारकिन पे नज़र पड़ गई, पहचान लिया और हमें फ़ोन आ गया। इसने अस्पताल का नाम पता भी बताया। सारी रात में और बड़ा बेटा अस्पताल में रहे। शर्म के मारे इनके बड़े भाई को इत्ला ना दे रहे थे। सुबह हमने इनको इत्ला दी, वो दौड़े आए, घर ले आए। नंदे और भावजे भी आ गई। मैं शर्म से चुप क्या कहती, दुआ करती रही कि सलामत रहें, वरना ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी। खुदा की मर्जी, इनकी जिंदगी इतनी ही थी। होश में आए तो बहकी बहकी बातें करने लगे। इनके जहन पर असर हो गया था। मुझको पहचान रहे थे ना बच्चों को। कहते थे कि तुम लोग कौन हो। अब हम परेशान थे, क्योंकि ऐसी जहनी हालत में जुबैर को संभालना मुश्किल अमर था। इनके बड़े भाई ने हमारी परेशानी को भांप लिया और इनको अपने घर ले गए कि अपने भाई का मैं खुद ख्याल रखूंगा, आप लोग नहीं रख सकते। जुबैर वहां चंद रोज रहकर इस जहाने फानी से कूच कर गए। अब हमको एहसास हुआ कि हमसे कितना बड़ा जुल्म हुआ है। वही घर जिसमें रहने से मैं भाग रही थी, इसने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी। मैके वालों ने आसरा नहीं दिया, मगर जेठ ने सहारा दिया। जाने वाला तो चला गया, तुम तो अपना घर छोड़कर ना जाओ। मैंने मैके में रहकर भी देख लिया, वहां भी 4 दिन की चांदनी थी। अब कोई इस डर से साथ चलने को ना कहता था कि 4 अफराद का ये कुंबा कौन रखे, बच्चे की शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। भाई खामोश, तो भाभियां तलकीन करती रही कि जो इज्जत अपने बाप के घर में रहकर बच्चों को मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। जुबैर कुछ सरमाया छोड़ गए थे, वही काम आया, मगर ये रकम भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई। आपा कहती थी कि हम जो हैं, हम मदद करेंगे। वो सब ज़मानी जमा खर्च था। वो भी दम सादे थी। चंद रोज़ रहकर चली गई, दोबारा ना आई। बस फ़ोन पर लफ्ज़ी तसल्लियाँ देती, माली मदद ना की। अब मुझको आटे दाल का भाव तो मालूम हो चुका था। माली मदद जो की, वो जेठ और नंदों ने की। दुख सुख में साथ दिया। वालदैन ज़ईफ़ुल उमर क्या करते, वो खुद अपने बच्चों के मोहताज थे। अब जुबैर की मोहब्बत याद आती और इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती। बच्चों को भी अकल आ गई। बाप को याद करके रोते थे, जिसने ऐश कराए और खुद मेहनत की, सारी उम्र हमारे आराम का ख्याल रखा। इन्हीं दिनों जब परेशानी से सख्त जी मांदा था, किसी ने बड़े लड़के को गली में गाली दी। इसने गुस्से से पत्थर उठाकर दे मारा। इस लड़के का सर फट गया, खून बहने लगा। इसको लोग अस्पताल ले गए। मेरे लगते जिगर को हवालात ले जाकर बंद करवा दिया। मेरी जान पर बनाई। भाइयों को फोन किया, जवाब मिला, इतनी दूर काम धंधा छोड़कर कैसे आए, वहां तो कई दिन लग जाएंगे। तुम अपने जेठ से कहो जो मुल्तान में बैठे हैं। इधर राशिद जेल में बेयारो मददगार, बेसहारा। घर में मैं रोती थी। इस वक्त अगर जुबैर होते तो कैसे बर्दाश्त करते कि इनके बेटे को जेल हो। वो तो दिलेर, दबंग और कानून के माहिर आदमी थे, मगर अब मजबूर थे, बेटे की मदद ना कर सकते थे कि अब मनो मट्टी तले जा सोए थे। आखिर जेठ के पास गई कि आप मेरे बेटे की रिहाई करवाएं, वो लावारिस जेल में पड़ा है। वो हवालात में बंद कराने वालों के पास गए, राजीनामा कराकर झगड़ा खत्म कराया, मुआवजा भरा और राशिद को छुड़वा कर ले आए। आज शोहर के ना होने से मैं खुद को कितना तन्हा और बेबस महसूस कर रही हूँ। बहन बहनोई को पैगामात भेजे, भाइयों को बुलवाया, कोई ना आया। जिस मैके के पीछे भागती रही, कोई काम ना आया। अब मैके वाले नहीं पूछते थे, अकेले ही दुख काटने थे। जेठ ने फिर भी साथ दिया। सास ससुर जो जेठ के घर रहते थे, मेरे पास आ गए कि मैं अकेली ना रहूं। अब सोचती थी कि जिसके लिए घर बार शोहर छोड़ दिया था, बुरे वक्त में उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। क्या बताऊं दिल पर क्या गुजरी। मुझसे बड़ी भूल हुई, इतने मोहब्बत करने वाले शोहर का दिल दुखाकर और बहन की बातों में आकर। मेरे बच्चे साथी और मेरे बच्चों के हमदर्द तो सिर्फ जुबैर ही थे। अब हर एक से कहती हूँ, अच्छा शोहर मिले तो इसकी कदर करना चाहिए, वरना दुख मिलते हैं। शोहर के सिवा सारे सहारे झूठे होते हैं, चाहे भाई हो या बहन हुई। बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं।